find in the devotees of Krishna. How Krishna made offense by stealing butter from Mother Yasoda, therefore she bound him to the grinding mortar and gave him punishment. But even though Sachinandan Gaurahari would break every pot in the house and throw the rice and gur and ghee everywhere, Mother Sachi did not do anything. Therefore she is even more kind than Mother Yasoda. Therefore, we are not experiencing the ecstasy of chanting Krishna name because we are tasting the fruit of our previous offences. But one who stays some time here in Navadvip Dham, then very quickly all their anarthas and aparadhas will go. Then one can taste the nectar of the name of Krishna. Therefore, in order to give us this instruction, Sri Jagannath Das Babaji Maharaj, he left Vrindavan and took shelter here in the Dham of Sri Chaitanya Mahaprabhu. One time Babaji Maharaj had collected so much pranami and he instructed his servant Bihari, "Oh Bihari, you should go and purchase huge amounts of rasgullas and feed to the dogs and to the cows of this Gauda Mandal. Don't waste your money feeding the Babajis because the Babajis are engaged in illicit connection with women. Therefore we will give the rasgullas to the dogs of the Dham." And lastly we visited Nirdoi Ghat. Near Doya, Chaitanya Mahaprabhu manifested there. He has no doya or affection for the residents of Navadvip because he left them all and took sannyas. And from that Nirdoi Ghat, he left Navadvip and went to Katwa and took sannyas. Because some of the residents of Navadvip had developed an offensive attitude towards Mahaprabhu. Therefore, in order to rectify them, he went there and took sannyas. Only 5 devotees knew of the upcoming sannyas initiation of Chaitanya Mahaprabhu. That was Sri Chandrasekhar Acharya, Sri Haridas Thakur, Sri Nityananda Prabhu, Sri Gadadhar Pandit, and Gadadhar, Murari Gupta, Mukunda. So only these 5 devotees knew of Mahaprabhu's taking of sannyas. The last night that Mahaprabhu spent in Navadvip, then Sridhar Prabhu, he brought one type of Loki, and they're being very controlled by the affection of Sridhar. Then Mahaprabhu gave that Loki to Mother Sachi, who ground it into Loki Kheer, a type of kheer made with milk and Loki. That was Mahaprabhu's last meal. And the astonishing character of Sri Vishnu Priya, Mahaprabhu's beloved wife. The last day that Mahaprabhu was here in Navadvip, he began lovingly decorating the hair of Vishnu Priya. Then Vishnu Priya was most astonished since the 5 years or 10 years of her marriage with Gaurahari, he had not manifested that type of open affection. Therefore, when he was decorating her hair, instead of becoming happy, she became absorbed in anxiety. Because that morning when she had gone to take bath, she had stubbed her toe and some blood was coming out. This is very inauspicious. Also when she took bath in the Ganga, her nose ring that is given to the girl at the time of her marriage, that was lost. This is most inauspicious. When the husband leaves, then the lady takes off all their ornaments they received from the husband. Therefore, Vishnu Priya was weeping, and she was asking Mother Sachi, I don't know what fortune is written in my hand, what will happen to me? And Mother Sachi tried many ways to pacify her, but she could not be pacified. Just like a lamp, just before it is extinguished, the lamp goes very high, tuck, tuck. Therefore, Vishnu Priya thought, Gaurahari's love for me is just like that. It's reaching to its highest stage just before it's completely extinguished forever. Therefore, in the month of March, the month of December, January, very cold winter season, Mahaprabhu, Nimai, went to leave her. She took a determination, I will not sleep, but she slept by the influence of Yogamaya. And as Nimai left the house, he met Mother Sachi. She was in such a state of impending separation, she could not speak. She was like a painted picture. Therefore, Nimai did 4 times parikram of his mother, did pranam and took her foot dust on his head and left. And he came here to Nirdoi Ghat and Ha Krishna, he jumped in the cold water of the Ganga and went to Katwa. After taking sannyas, he returned to Shantipur, to the house of Sri Advaita Acharya.
all the devotees from Navadvip collectively went to Shantipur for 10 days festival with Nimai. But the only person who could not go was Sri Vishnu Priya, because how a wife can meet with her husband again after sannyas. But how Vishnu Priya did bhajan in separation from Gauranga. Every day she would take rice grain and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And with her tears she would wash the grains of rice and keep in a pot. That was cooked by Ishan Thakur, the sevak of Mother Sachi. And they would offer that to the Vigraha of Gauranga Mahaprabhu. Then Vishnu Priya would offer the Mahaprasad to Mother Sachi, and what was left, which could not feed even a sparrow, Vishnu Priya would take that. Therefore, she is Prem Bhakti Surupini. She is the very manifestation of Prem Bhakti towards Gaurasunda. Just like Srimati Radhika in separation from Krishna, how she lamented, how Vishnu Priya maintained her life and chanted the name continuously. And lastly, we came to Vaikuntapur. There the four main Sampradaya Vaishnavacharyas of Kali Yuga, they had darshan of Gaurasunda. And Mahaprabhu instructed them on their various philosophies. First, Sri Ramanuja came here to Vaikuntapur. There he began preaching his philosophy of Vishishta Advaita, specialized monism. After came Sri Madhvacharya, he preached his philosophy of Sudha Dvaita, pure dualism. And he manifested the duality by teaching 5 types of Veda, difference, Vedana. Then came Sri Vishnu Swami in the Rudra Sampradaya. He preached his philosophy of Sudha Dvaita, purified monism. And then was Sri Nimbaditya, who taught his philosophy of Swabhavik Veda Bhed, natural oneness and difference between Bhagavan and his energies. Sri Sankaracharya, who is the incarnation of Mahadev, he also came here, but Mahaprabhu instructed him, don't preach your Mayavadi here, because this is the place of the devotees, no one will listen to you here. Therefore, Sankaracharya also had darshan of Gauranga Mahaprabhu here. Chaitanya Mahaprabhu accepted 2 things from each of the philosophies of the 4 Vaishnavacharyas, especially from Sri Madhvacharya. He accepted the spirituality of the deity, and he also accepted Mayavad Khandan, Madhvacharya's very strict rejection of Mayavad philosophy. From the Sampradaya of Sri Sampradaya of Ramanujacharya, Chaitanya Mahaprabhu accepted 2 things, which was the idea of Ekantik Bhakti uncovered by karma or jnana, and also Vaishnav Seva, the service of the Vaishnav devotees. From the Sampradaya of Nimbaditya, Chaitanya Mahaprabhu took the glories of Srimati Radhika, Radha Nishta, and also the idea of the practice of Raganuga Bhakti. And finally, from Sri Vishnu Swami, Chaitanya Mahaprabhu took the idea of complete shelter of Radharani and the glories of the gopis. Therefore, all these 4 Vaishnav Sampradaya vicharas or conceptions are perfect, but if we look in a neutral manner, there is a little bit lacking in each of them. Chaitanya Mahaprabhu took what was from all 4 Sampradayas and manifested the complete tattva of Achintya Veda Ved Tattva, the simultaneous oneness and difference between Bhagavan and his multifarious energies. Go Premanandi. After the appearance of Chaitanya Mahaprabhu Aprakat Leela Vishkaran Kore, বিরাট নগর নবদ্বীপ গঙ্গার গর্ভেতে লীন হয়ে যায়। কেবল মহাপ্রভুর যেখানে জন্মভিটা সেটি থাকলো। 500 বছরের পরে সেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এসে খোঁজ করতে লাগলেন যে মহাপ্রভুর জন্মভিটা কোথায়। তখন কোনো লাইট দেখেন এই নদীর শহর থেকে ওখানে निश्चित उसखाने देखलें महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित शिवास आदि सब भक्तरा नृत्य करছে। যেটি দিনে সেখানে গেলেন সকাল বেলা দেখলেন যে সেখানে তুলসী কতগুলি বৃক্ষ আছে আর কিছু নেই, আর একটি তাল গাছ। তখন তিনি কলকাতার বড় বড় যারা
लीडर जातीय वैष्णव आनंद बाजार नकार संपादक अमृत बाजार संपादक वैष्णव लोग এইরকম ভাবে বড় বড় লোককে ডাকলেন আর বাবাজি মহারাজকে ওখানে মিয়াপুরেতে ডাকলেন এর নাম ছিল মিয়াপুর তারপরে বাবাজি মহারাজ ওই স্থানেতে 147 বছর বৃদ্ধ লোক আর তখন নৃত্য করে উঠছেন 5-7 লাখ দিয়ে বুঝে এই আমার গৌরের জন্মভিটা এই গৌরের জন্ম তখন থেকে ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ওইখানে থেকে জমিদারি কিনে আর কি 8 চালা ঘর করে ওইখানে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ পঞ্চতত্ত্ব পরে রাধা কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে ছিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীকে তখন বিমলানন্দ সরস্বতী তাহাকে নিযুক্ত করেছিলেন ধীরে 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 চারিদিকে প্রচার হলো যে এই মায়াপুর নূতন আবার ওই রকম হতে মন্দির ইত্যাদি সব উৎপন্ন হচ্ছে After the disappearance of Mahaprabhu, then this Navadvip Dham became covered. Therefore, maybe 100 years ago, Sri Thakur Bhaktivinoda was thinking, where can we find the place of the appearance of Sri Sachinandan Gaurahari? Therefore, from his bhajan kutia, he saw one very great light. And then he saw the devotees with dancing with Mahaprabhu, like Sri Nityananda, Sri Advaita, Sri Gadadhar Pandit, all the devotees dancing in that area. Therefore, the next day he went there, what was that time called by the Muslim community Miapur. And there, at the very place that he had the darshan, he saw one mound, like a mound of only tulsi was growing. Therefore, Bhaktivinoda Thakur could understand this was the appearance place of Chaitanya Mahaprabhu. So from Calcutta, he invited all the very learned personalities, the very senior devotees, also newspapers, etc. He called them there. At the same time, he invited Sri Siddharth Krishnadas Babaji Maharaj there, who at that time was 147 years old. When Sri Jagannath Das Babaji Maharaj came to that place, then he jumped out of his basket and said, "This is the birthplace of my Sachinandan Gaurahari." So Thakur Bhaktivinoda, he built a very vast temple there, established the deities of Sri Radha Madhav, Sri Mahaprabhu Vishnu Priya, Lakshmi Priya, and the Pancha Tattva. That was given all that seva was given to Sri Bimal Prasad, who after sannyas became Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and from there preaching developed into its wonderful form that it has taken today. Go Premanandi. हरिप्रिय ब्रह्मचारी चार्टी संप्रदाय संक्षेप विचारधारा की के लिए संबंधित वर्णन करो थोड़ा थोड़ा टच कर दो सब ऐसा सामने ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुद्दीन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्गीतमे कृतिकरो कमलायताक्षो
सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में जल्दी श्रद्धा प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णवों को भी यथायोग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्री गुरुदेव ने आदेश दिया है वैष्णव चार संप्रदाय के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उसका संक्षेप में वर्णन करना। यद्यपि मैं इस विषय में प्रवीण नहीं हूँ और कभी कुछ पढ़ा भी था तो अभी उसके संपर्क में नहीं हूँ, फिर भी यथामति या यथास्मरण कुछ करने का प्रयास करूँ। अनादिकाल से संसार में जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के मूल आचार्य चार हुए हैं। पहली आचार्या भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी, उनसे जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसको श्री संप्रदाय का। दूसरे आचार्य भगवान के आत्मज ब्रह्मा जी, उन्होंने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया आज उसे ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तीसरे आचार्य हैं भगवान के ही प्रकाश रुद्रदेव, उन्होंने जिस संप्रदाय का प्रचलन किया उसे रुद्र संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और चौथे संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को कुमार संप्रदाय कहा जाता है। ये संप्रदाय सृष्टि के प्रारंभ से ही जीवों के कल्याण में प्रवर्तित है, किंतु जैसा हम जानते हैं कालक्रम से भगवत प्रदत्त ज्ञान का लोप और आविर्भाव होता चला आता है। एक ही बार लोप हुआ ऐसा नहीं है और एक ही बार प्रकाश हुआ ऐसा भी नहीं। तो वर्तमान कलयुग में उन चार संप्रदाय के सिद्धांतों को फिर से हम पतित जीवों के उद्धार के लिए प्रतिष्ठित करने वाले जो चार आचार्य हुए हैं श्रीमद् रामानुजाचार्य, श्रीमद् मध्वाचार्य, श्री बिंबादित्य स्वामी और श्री विष्णु स्वामी। श्री संप्रदाय श्री लक्ष्मी जी संप्रदाय की आचार्य थी, उनके अनुगत होकर श्री रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रचार किया उसे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहते हैं। यहाँ हमारे दर्शन शास्त्र में एक शब्द है अद्वैत। इस अद्वैत शब्द को लेकर के बहुत भ्रांति हुई। रामानुजाचार्य के आविर्भाव से पहले, बहुत पहले भारत में एक अत्यंत प्रभावशाली आचार्य हुए जिनका नाम है शंकराचार्य। अद्वैत शब्द शास्त्र में बहुधा सुना जाता है, किंतु अद्वैत शब्द का जो उन्होंने अर्थ किया वह जीवों के कल्याण के लिए समर्थ नहीं, उपयोगी नहीं। उन्होंने अद्वैत शब्द का अर्थ किया जहां दूसरा कुछ नहीं है। न विद्यते द्वैतम यत्र तत् अद्वैतम, जहां दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरी नाम की कोई वस्तु ही नहीं। ये संसार में जो कुछ विचित्र प्रकार की वस्तुएं हम देख रहे हैं, ये जो नाना अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, इसको उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है? जिस प्रकार स्वप्न में हम बहुत प्रकार की चीजों को देखते हैं, वहां सुख दुख का भी अनुभव करते हैं, किंतु जैसे ही स्वप्न भंग होता है वैसे ही हम उस सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं। वहां कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से अविद्या के द्वारा यह नानात्व
अनेक प्रकार की जो वस्तुएं दिख पड़ रही हैं, ये अविद्या के द्वारा ब्रह्म में कल्पित हुई हैं। जिस क्षण अविद्या जीव को छोड़ देगी, उसी समय ये जो बहुत प्रकार की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, दिखाई नहीं पड़ेगी। जब कोई दूसरी वस्तु दिखाई पड़ेगी नहीं, तो जो वस्तु बच जाएगा वह है अद्वैत। और उस अद्वैत वस्तु का स्वरूप क्या है? चिन्ह मात्र, वह ज्ञान मात्र है, उसमें और कोई विशेषता नहीं है। यदि उसमें विशेषता को स्वीकार किया जाए तो वेद के कई वाक्यों का सामंजस्य करना संभव नहीं होगा, यह उनका मत रहा है। इसलिए उनका सिद्धांत कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। प्रश्न उठता है, जो ये नाना प्रकार की वस्तुओं को देख रहा है, यह कौन है? तो उन्होंने कहा, यह जो जीव है, जब तक अविद्या के संपर्क में जीव रहता है, अविद्या के संपर्क में ब्रह्म रहता है, तब तक वह जीव है। और जब यह अविद्या का संपर्क उससे दूर हो जाता है, तो उसका जीवत्व भी दूर हो जाता है। इसलिए एकमात्र ब्रह्म वस्तु ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और यह संसार जो हमें दिखाई पड़ रहा है, यह क्या है? यह झूठा है, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में दिख पड़ने वाली वस्तु की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। स्वप्न में हम देखते हैं हम राजकुमार बन गए, कि जगने पर क्या हम समझते हैं अपने आप को राजकुमार। उसकी सत्ता तभी तक है जब तक हम स्वप्न देख रहे हैं। वह स्वप्न क्यों है? हमारे अंदर अविद्या की वृत्ति के कारण। जिस क्षण वह अविद्या की वृत्ति जगने के बाद दूर हुई, उसी क्षण हमने अपने आप को क्या देखा? हम राजकुमार नहीं हैं, हम तो अमुक व्यक्ति हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, स्वप्न में दिख पड़ने वाली वस्तु की तरह यह जगत जो है मिथ्या है। इसलिए जैसे ही अविद्या का संपर्क जीव से दूर होगा, तो क्या देखेगा? अरे मैं अपने आप को जो राजकुमार या राजा समझ रहा था, वो तो गलत है। उसी प्रकार से क्या देखेगा? मैं जो अपने आप को जीव समझ रहा हूँ, खुद को जीव समझना यह गलत है। मैं क्या हूँ? जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव जो है ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। यह संक्षेप में शंकराचार्य जी का मत है। किंतु यह मत जीव के पक्ष में अकल्याणकारी है। उनके बहुत शताब्दियों के बाद श्री रामानुजाचार्य इस जगत में आए, जिन्होंने शंकराचार्य जी के इस मत का घोर खंडन किया। उन्होंने कहा अद्वैत जो है शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित, उसको कहते निर्विशेष। किंतु अद्वैत होने पर भी वह निर्विशेष नहीं है। वह क्या है? सविशेष है। सविशेष का मतलब जैसे वृक्ष है, पत्ते, शाखाएं, फूल, इन चीजों के बिना किसी वृक्ष की कल्पना नहीं हो सकती। तो यहाँ वृक्ष की शाखा, वृक्ष के पत्ते, वृक्ष से अतिरिक्त कुछ वस्तु नहीं है, किंतु साक्षात वृक्ष भी नहीं है। इसके द्वारा युक्त जो पदार्थ है वह है वृक्ष। इसी प्रकार से यह ब्रह्म जो है तो अद्वैत। वृक्ष एक ही है, शाखा तक पत्तियों के रहने के बावजूद भी वृक्ष एक ही वस्तु है। उसी प्रकार ये संसार, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जीव, इन चीजों के रहने पर भी वस्तु एक ही है। इसलिए उसको कहा उन्होंने अद्वैत, जिसके अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है। पर अतिरिक्त किस प्रकार से नहीं है उसको उन्होंने कहा, जो हमेशा ही उसका विशेषण बन के रहते हैं। जिस प्रकार पत्तियों को वृक्ष का विशेषण कहा जाता है, शाखाओं को वृक्ष का विशेषण कहा जाता है, इसी प्रकार ये जगत और जीव समुदाय जिनके विशेषण बन करके रहते हैं, वह जो वस्तु है वह है अद्वैत। जहाँ एक शब्द है शेष, उनके संप्रदाय में इस शेष शब्द का बहुत महत्व है।
ये शेष का मतलब वो कहते हैं, भगवान जो है वे हैं शेषी, जीव जो है उनका शेष। जो शेषी वस्तु हैं वे हैं सेव्य वस्तु, और जो शेष वस्तु है वह है सेवक वस्तु। भगवान शेषी हैं, वे अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी होकर के इस जगत का, माया निर्मित संसार और जीव जगत दोनों का ही वे नियमन करते हैं। इसलिए ये उनके शेष होने के कारण इनका कर्तव्य बनता है अपने शेषी की सेवा करें। शेष और शेषी को दूसरे शब्द में अंश और अंशी के रूप में हम कह सकते हैं। जो अंशी हैं, जो मूल हैं, वे हो गए सेवी। जो उनका अंश है वे हो गए सेवक। अंश का तात्पर्य वैष्णव सिद्धांत में ये नहीं होता है कि कुल्हाड़ी लेकर के उसको काट काट करके छोटा किया गया है। वैष्णव सिद्धांत में अंश शब्द का मतलब होता है उनके अनुगत होकर के जो वस्तु हमेशा विद्यमान है वह है अंश। जीव जब तक भगवान के अनुगत होकर के है तब तक उसको अविद्या नहीं सता सकती है। जिस क्षण जीव अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझता है, अविद्या का उस पर आक्रमण होता है और वह सुख दुख का भोग करता है। इसलिए उनके सिद्धांत में कहते हैं ये विशेषण और विशेष्य का जो भाव है, इसको उन्होंने कहा शरीर और शरीरी का भाव। शरीरी, इस शरीर के अंदर मुख्य वस्तु जो है जिसके आधार पर यह शरीर टिका हुआ है वह है शरीरी, जिसको कहते हैं आत्मा। यद्यपि दिखाई नहीं पड़ता है किंतु व्यवहार से हम समझते हैं, जानते हैं। जिस क्षण वह शरीर इस शरीर से निकल के चला जाए, ये शरीर उसी समय से क्या होना शुरू होता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। इस शरीर की सत्ता तभी तक है जब तक इसके अंदर वह शरीर विद्यमान है। शरीर जो है शरीर पर निर्भर है। इसी प्रकार यह विश्व और यह जीव संसार, जीव जगत, ये दोनों ही भगवान के शरीर हैं। भगवान क्या है, शरीरी हैं। भगवान की सत्ता का आश्रय छोड़ करके इस जगत की सत्ता का हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, जीव का भी चिंतन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान शरीर ही है और ये जीव और यह संसार, यह शरीर है। शरीर ही शरीर का नियमन करता है। भगवान इस संसार के और इस जीव के नियामक हैं। नियामक अर्थात कंट्रोलर। इसलिए संसार और जीव उनका शेष है और भगवान जो हैं वे शेषी हैं। इसलिए निकाल कर विशिष्टाद्वैतवाद, वस्तु जो है चित्त और अचित्त, इस विशेषण से युक्त होकर के जो वस्तु है वही है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट का मतलब होता है विशेषण होकर के रहा। जीव और जगत उनके विशेषण के रूप में विद्यमान है और वे विशेष के रूप में विद्यमान है। इसलिए उनसे अतिरिक्त शरीर को, जैसे हम आत्मा से अतिरिक्त चिंता करने पर भी इसकी सत्ता की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसा ही भगवान के साथ जीव और जगत का संबंध है। इसलिए उन्होंने अपने दर्शन का नाम दिया विशिष्ट अद्वैत। यहाँ जो अंशी वस्तु है उसका कर्तव्य है, जो अंश वस्तु है उसका कर्तव्य है अपने अंशी की सेवा करना। इसी को आधार बना करके रामानुजाचार्य के संप्रदाय में सेवा का भी अत्यंत महत्व है। महाराज जी ने कहा, महाप्रभु ने रामानुजाचार्य के संप्रदाय से क्या ग्रहण किया, सेवा का भाव। वैदिक भक्ति में किस प्रकार से भगवान की सेवा होती है, इसकी पराकाष्ठा रामानुज संप्रदाय में देखने को मिलती है। ये संक्षेप में श्री संप्रदाय का, रामानुज संप्रदाय का मत हुआ। रामानुज संप्रदाय के बाद शंकर मत के सर्व प्रधान विरोधी आचार्य हुए श्रीमद मध्वाचार्य, जिसको हमने भगवान के द्वितीय पुत्र ब्रह्मा जी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कहा। उसी संप्रदाय के अंतर्गत कलयुग में जीवों का कल्याण करने के लिए श्रीमद मध्वाचार्य जी यहाँ प्रस्तुत हुए। उनके सिद्धांत का नाम है शुद्ध द्वैत। शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैत,
रामानुजाचार्य का सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत, मध्वाचार्य का सिद्धांत शुद्ध द्वैत। ये कहते हैं अद्वैत कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 वस्तुएं हैं। वस्तु 3 है प्रधान, और इन 3 वस्तुओं में 5 प्रकार के भेद नित्य ही हैं। जब ये भेद नित्य वर्तमान है तो प्रधानता भेद की है, न कि अभेद की। इसलिए इन्होंने अपने संप्रदाय के सिद्धांत का नाम दिया शुद्ध द्वैतवाद। 3 वस्तु क्या है? जो रामानुज संप्रदाय में जो 3 वस्तुएं स्वीकृत की गई थी, भगवान, संसार और जीव। उस संसार को ही यहाँ प्रकृति शब्द से कहा। तो भगवान, जीव और प्रकृति, इन तीनों में 5 प्रकार के भेद हैं। भगवान का जीव के साथ भेद है, भगवान का प्रकृति के साथ भेद है, जीव का जीव के साथ भेद है, प्रकृति का प्रकृति के साथ भेद है, और जीव का प्रकृति के साथ भेद है। ये 5 प्रकार के भेद नित्य होने के कारण उन्होंने कहा भेद की प्रधानता है, और इस दर्शन का नाम होना चाहिए द्वैतवाद। इसका बीज उनको उपनिषद में जहां मिला, यह है श्वेताश्वतर उपनिषद। वहां कहते हैं इस हृदय रूपी वृक्ष पर 2 नित्य वस्तु है। एक वस्तु, 2 पक्षियां हैं। एक पक्षी जो है वह तो विभिन्न प्रकार के फलों का आस्वादन करता है, और दूसरी पक्षी जो है वह उदासीन होकर के उस पहले वाले पक्षी को सुख दुख का अनुभव करता हुआ देखता है। इन दोनों की पूर्ण समानता कभी नहीं है। ये उनके लिए वाक्य जो है उनके संप्रदाय का आधार है। द्वा सुपर्णा संजा सखाय, 2 पक्षी पदार्थ अर्थात पक्षियां एक वृक्ष की शाखा पर है। वह वृक्ष क्या है? यह शरीर। किंतु एक पक्षी वहां कुछ खाता है, भोग करता है। वह क्या है? अपने कर्मों के द्वारा जनित सुख दुख का भोग करता है। और दूसरा पक्षी उदासीन भाव से है। वहां पहले पक्षी के द्वारा किए गए कर्म के साथ उनका संबंध नहीं होता है। ये उनकी विशेषता है। तो यहाँ जो 2 वस्तु की नित्यता स्वीकार की गई है, इसको आधार मान करके उन्होंने द्वैत को प्रधान कहा और अपने मत को शुद्ध द्वैत मत कहा। किसी अंश में समानता भी है दोनों वस्तुओं में, किंतु असमानता, इसकी प्रधानता होने के कारण उन्होंने भेद को स्वीकार किया। इसी प्रकार 2 जीव जो है, इनमें भी नित्य भेद है। एक ही क्षण में कोई जीव सुखी दिखाई पड़ता है और उसी क्षण दूसरा जीव दुखी दिखाई पड़ता है। यदि दोनों ही जीव समान होते तो फिर दोनों को एक ही साथ सुख दुख का अनुभव होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। यह सिद्ध करता है कि 2 जीव में भी परस्पर भिन्नता है। इसी प्रकार प्रकृति का जो विलास इस संसार में है, उसमें 2 वस्तुओं में परस्पर भिन्नता है, और जीव और प्रकृति में भी भिन्नता है। भगवान और प्रकृति में भी भिन्नता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है और प्रकृति त्रिगुणमयी है। इसलिए इस भेद को प्रधान मानते हुए उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। तीसरे आचार्य, समय का समापन हो गया। मेरे कहने में कुछ त्रुटि होगी तो वैष्णव उसका संशोधन करेंगे। 5 छात्र इसके बाद ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः
प्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत से वामन गोस्वामी महाराज तथा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज दोनों के इसी चरण जुगल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद, सन्यासी जन तथा पूजनीय वैष्णव वृंद, समस्त सज्जन मंडली, मातृवृंद, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। 15-20 मिनट अभी अभी आपने सुना है कि चारों वैष्णव आचार्यों के विचार। आज प्रातः काल भी कोई उपास्य बन महाराज जी ने बंगला में बताया था, अभी अभी गुरु जी ने बताया और श्री हरिप्रिय प्रभु जी ने भी आपके सामने विचारों को व्यक्त किया है कि संप्रदाय विहीना जे मंत्रा स्ते विफला मता अतः कलौ भविष्यन्ति चत्तार संप्रदायिन श्री ब्रह्मरुद्र शनका वैष्णवा क्षति पावना। पद्म पुराण में वर्णन हुआ है कि संप्रदाय के आधार पर जो मंत्र हैं और गुरु परंपरा के द्वारा जो प्राप्त सिद्ध मंत्र हैं वही फलदायी होता है, अन्यथा जितने भी इधर उधर के हैं उसका कोई मतलब नहीं है और कोई सिद्धि नहीं है, उस मंत्र का भी कोई फल नहीं होता। अतः वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव गुरु से ही मंत्र ग्रहण किया जाता है और वैष्णव आचार्यों ने भगवान की सेवा, उनकी महिमा, उनके स्वरूप को जगत में प्रकटित किया है। क्योंकि संसार जो है अज्ञान में डूबा हुआ है और अज्ञानी जी विविध प्रकार के भ्रम जाल में डूबे हुए, बहुत प्रकार के मत मतांतरों में बहते। इस कारण वैष्णव आचार्यों ने शुद्ध वैष्णव सिद्धांत विचारों को प्रकट किया है और उसके द्वारा भगवत स्वरूप का निर्णय दिया, जो कि श्री रामानुजाचार्य जी ने लक्ष्मी नारायण की सेवा प्रकट की और उनके स्वरूप साकार सच्चिदानंद स्वरूप बताया, जो कि भगवान कोई निराकार निर्विशेष नहीं है या कोई कल्पना या शून्य नहीं है, वास्तव सत्य वस्तु जगत में प्रकटित हुआ करते हैं और भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं। इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत को प्रकट किया और उसके पश्चात श्रीमद मध्वाचार्य, जो कि 5 प्रकार के भेद का निरूपण करते हुए शुद्ध द्वैतवाद को प्रकट किया और श्रीमद मध्वाचार्य जी ने, जो कि उडुपी में बाल गोपाल मूर्ति की स्थापना करते हुए कृष्ण आराधना को प्रकट किया है। यद्यपि उनके संप्रदाय में आज भी बहुत से लोग लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, परंतु मुख्यतया कृष्ण उपासना देखी जाती है। अब गुरु जी का आदेश हुआ है इससे आगे, जो कि श्रीमद मध्वाचार्य ने पंचभेद स्वीकार करते हुए शुद्ध द्वैतवाद को स्थापन किया। 5 भेद के द्वारा नित्य वर्तमान, 5 भेद नित्य वर्तमान है। जीव जीव में भेद है, ईश्वर जीव में भेद है, जीव और जड़ में भेद है, ईश्वर और जड़ में भेद है, जड़ और जड़ में भेद है। इस कारण दोनों कभी एक नहीं हो सकता है और नित्य भेद में रहते हुए भी उपास्य उपासक रूप में सेवा, उपासना, परिचर्या सभी और भक्ति स्थिर होती है। अन्यथा भक्ति नाम की कोई चीज नहीं रहती है, जहाँ सभी कुछ मिटा करके अभेद हो जाता है।
इसके पश्चात से विष्णु स्वामी जी ने उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की कि परब्रह्म भगवान श्री हरि वे शुद्ध रूप में अद्वैत हैं। ये जितने भी वैष्णव आचार्य हैं श्रीमद् भागवत के आधार पर उन्होंने ये वर्णन किया कि संपूर्ण विश्व जगत भगवान ईतरो, भगवान ही हैं, परंतु भगवान से पृथक। क्योंकि संसार का विनाश होता है, जगत का विनाश होता है, भगवान का कभी विनाश नहीं होता। वे नित्य वर्तमान और उन्हीं का ही प्रकाश है, उन्हीं का ही अवयव है। भगवान ही विराट रूप में ये संपूर्ण विश्व जगत है। क्योंकि विराट रूप का वर्णन करके दिखाया, समुद्र जिनका उदर है, नाड़ियां जिनके, नदियां जिनके नाड़ी हैं, शिराएं हैं, वक्षस्थल पर्वत है और आकाश, स्वर्गलोक जिनका मस्तक है, पाताल जिनका चरण तल है और पृथ्वी लोक जिनका कटिदेश है। इस प्रकार संपूर्ण विराट रूप में ही वर्णन किया है। इसलिए भगवान ने अपने को अपने द्वारा, अपने लिए, अपने में से, अपने संबंध में और अपने में ही ये संपूर्ण जगत को बनाया और जीवों को इस संसार में भेजा। इसलिए जीव जो है वो विभिन्नांश तत्व है। इसलिए सभी वैष्णवाचार्यों ने इस विभिन्नांश तत्व जीवों को स्वीकार करते हुए कहा ये सभी कुछ उस परब्रह्म का ही प्रकाश है और उन्हीं के साथ जुड़े हुए शुद्ध रूप में अद्वैत अद्वैत ब्रह्म है। इसलिए वे अद्वैत ज्ञान पर तत्व है। और श्री निम्बादित्य जी ने कहा कि शुद्ध द्वैतवाद, द्वैत स्वाभाविक द्वैतवाद व शुद्ध द्वैतवाद, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। इस प्रकार भगवान और जीव इसलिए दो हैं, भगवान और जगत दो हैं परंतु एक नहीं, और सभी भगवान से संबंधित और जुड़े हुए हैं, अद्वैत हैं। इस प्रकार जितने भी वैष्णवाचार्य हैं उन लोगों ने ये अपना अपना जो मतवाद सिद्धांत निरूपण किया, इसको वाद कहा जाता है। शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने क्या कहा है? श्री अचिंत भेदा भेद सिद्धांत। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस बात को कहा वो है परिणामवाद। एक वस्तु परिणामवाद, दूसरा है शक्ति परिणामवाद। कि वस्तु परिणामवाद क्या होता है कि ब्रह्म ही जीव रूप में हुआ है और ब्रह्म ही जगत रूप में परिवर्तित हुआ है, ये है बात वस्तु परिणामवाद। और शक्ति परिणामवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है? उनका कहना है कि शक्ति परिणामवाद ब्रह्म अविकारी, निर्विकार रह करके भगवान ने अपने शक्ति के द्वारा जीवों को और जगत को प्रकाशित किया है। ये संपूर्ण जगत और जीव उन्हीं के शक्ति का प्रकाश है। जैसे मणि मंत्र औषधियां अपनी शक्ति का प्रकाश होता है, वस्तु ज्यों के त्यों बना रहता है और उसमें शक्ति ही काम करती है। वैसे ब्रह्म अविकारी, निर्विकार और निर्विकार रह करके वे जीव और जगत को विभिन्नांश रूप में और जगत को परिणाम रूप में, शक्ति के परिणाम रूप में प्रकाशित किया है। अतएव वस्तु परिणाम एवं शक्ति परिणाम दोनों में अंतर होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के सिद्धांत में श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमारा अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का क्या कहना है? एकम एक परमम तत्व
स्वाभाविक चिंता सकता स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धावतिष्ठति एकमेव परमं तत्व एक अद्वितीय एकमेव अद्वितीयम तत्व भगवान श्री हरि है। उन्हीं को ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व कहा गया है और उन्हीं को ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं दर्शाया है। इसलिए कहा कि एकमेव परमं तत्व एक ही परम तत्व स्वाभाविक अचिंत सकता स्वाभाविक अचिंत शक्ति के द्वारा स्वरूप तद्रूप वैभव स्वयं रूप कृष्ण ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन स्वयं रूप कृष्ण ब्रज विलासी श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर वे हैं स्वरूप स्वयं रूप तत्व स्वरूप तद्रूप वैभव। जितने भी अवतार हैं ये सभी भगवान के वैभव अवतार हैं, इसलिए तद्रूप वैभव का है। सभी कुछ भगवान श्री कृष्ण से प्रकाशित हुआ है और सभी कोई अंश कोई कला एते चांस कला पुंस एते अवतारा। ये जितने भी अवतार का वर्णन किया गया भागवत में ये सभी कोई अंश कोई कला है, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इस विषय पर वर्णन किया है। अब कहते हैं तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धा प्रतिष्ठते। जीव जो है भगवान के विभिन्न अंश प्रकाश है, भगवान की तटस्थ शक्ति से विभिन्न अंश रूप जीव समुदाय प्रकट हुए हैं। अतएव गीता शास्त्र में जीव रूप शक्ति करीमानी अपरियमितस्तु अन्नम प्रकृति वृद्धि में पराम। हे अर्जुन एक परा प्रकृति है उसको जीवभूता जीव रूपा प्रकृति कहा जाता है, इसलिए जीव शक्ति स्वरूपा है। अतः जीव प्रधान रूपेण चतुर्धावतिष्ठते। भगवान ने इस जगत को प्रकटित किया है, अपने में से ही इस जगत को प्रकटित किया है। अतः सब कुछ उन्हीं का ही बहिरंग स्वरूप या बाहरी स्वरूप विराट रूप विश्व रूप, अतः उनसे कोई भेद नहीं है। इसलिए अचिंत भेदा भेद सिद्धांत भेद भी है और अभेद भी है। भेद क्यों? जीव कभी ब्रह्म नहीं बनेगा, जीव रूप में ही सनातन, इसलिए उसके सनातनत्व की कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अतः जीव रूप में शुद्ध रूप में वो सनातन है। और उधर में जगत जो है जगत कभी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का ही प्रकाश है, इसलिए भेद है क्योंकि जगत जड़ है और भगवान से अभिन्न संबंध है। अब भगवान को अद्वैत ज्ञान परतत्व कहा है। अद्वैत ज्ञान परतत्व का मतलब क्या होता है? न द्वयम् इति अद्वयम्, जिनका कोई द्वितीय नहीं है, जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, जिनके कोई बराबरी करने वाला नहीं है, जिनसे बढ़कर के कोई नहीं होता है, ऐसे अद्वैत ज्ञान तत्व को ऐसे वस्तु को अद्वैत ज्ञान तत्व कहा जाता है। उन्हीं को ये भगवान कहा गया है। अब अद्वैत ज्ञान तत्व कहने से भगवान कहने से किसको कहें? आप दुनिया में जैसे कितने कितने भगवान बन गए हैं और कितने भगवान नाम से प्रचार होता है, पर तो भगवान कहते किसको है? बोले अद्वैत ज्ञान परतत्व। अद्वैत ज्ञान परतत्व का मतलब क्या है कि स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रहित तत्व को ही अद्वैत ज्ञान तत्व कहा जाएगा। स्वगत भेद, जिनके स्वरूपगत कोई भेद नहीं है। हमारे शरीर का विचार जब हम करेंगे तो हमारा शरीर और आत्मा दोनों में भेद है। आत्मा जड़ चेतन वस्तु है और शरीर जड़ वस्तु है। शरीर के द्वारा वो जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकता है। शरीर तो जड़ हुआ, आत्मा चेतन है, परंतु भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। देह दही भिदा नास्ति निस्सरे विद्यते कच्ची।
बोलने कहा कि देह और देही आत्मा भगवान श्री कृष्ण उनका स्वरूप और उनका जो शरीर जो स्वरूप है उनमें कोई भेद नहीं है। अंगारी यस्य सकलेन्द्रियं वित्ति मन्ति पश्यन्ति पान्ति चिरं जगन्ति, जो कि अंगारी यस्य सकलेन्द्रियं वित्ति मन्ति, उनके जितने भी इंद्रियां हैं एक एक इंद्रिया सभी इंद्रियों में काम कर लेती है, अतः सभी कुछ उनके द्वारा संभव है। और पानी पादो यवन ग्रहिता, हाथ नहीं पैर नहीं आंख नहीं कान नहीं, बोले कि आंख के द्वारा देख रहे हैं, कान के द्वारा सुन रहे हैं, हाथ के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, पैर के द्वारा चल रहे हैं, बड़ा विचित्र है। तो बोले कि प्राकृत निषेध ही करे अप्राकृत वर्ण, कि प्राकृत भगवान का कोई प्राकृत देह प्राकृत स्वरूप नहीं है, उनका जितना जो कुछ भी है सभी कुछ अप्राकृत सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए भगवान का स्वरूप जो है सच्चिद आनंद स्वरूप, अतः आनंद स्वरूप कहा गया है। उनमें कोई भेद नहीं होता, स्वगत भेद रही, स्वजातीय भेद रही, जितने भी अवतार हैं सभी उन्हीं से ही प्रकटित हुआ है, और विजातीय जीव और जगत सभी कुछ उन्हीं से ही समाया हुआ है। अतः पृथक नाम का कोई वस्तु नहीं है। भेद होता है दो स्थान स्वतंत्र सत्ताशील वस्तु में भेद होता है, परंतु इस विश्व जगत में कोई भी स्वतंत्र सत्ताशील वस्तु है ही नहीं, अतः दोनों इसलिए किसी में भेद नहीं होता। अतएव अचिंत भेदाभेद सिद्धांत के द्वारा यह निर्णय किया गया, यह दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण जो है वे स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रहित, भगवान कृष्ण जो है नवकिशोर नटवर गोपवेश वेणुकर वे नित्य नवकिशोर है। बाल्य पौगंड तथा कैशोर, कैशोरे नित्य स्थिति, कैशोर स्वरूप में उनकी नित्य स्थिति है। इसलिए कैशोर से बढ़ करके यौवन में, और यौवन से बढ़ करके प्रौढ़ता में, और वार्धक्य दशा में कभी नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण नवकिशोर है, नित्य काल नित्य किशोर स्वरूप में अवस्थान करते हैं। इसलिए उनके शरीर का कोई विकृति या परिवर्तन हमारे जैसे परिणामशील नहीं होते हैं। अतः भगवान सर्वकाल है, नित्य काल है। वे अद्वैत ज्ञान परतत्व कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे ब्रज विलासी श्याम सुंदर, वे ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार अचिंत भेद भेदाभेद सिद्धांत के द्वारा यही निरूपण किया है। आज मैं अपना वक्तव्य यही पर विराम देता हूँ। पंचागवत रूहस्य कृपा सिंधुवैवत त्रिताणां पावनी भुवैष्णवी। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे hare. First of all, I offer my most respectful obeisances unto lotus feet of my Diksha Guru, Nitya Lila Pavishtom Vishnupad, Astottara Satasishmat, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj. Again,
I offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of my sannyasi Shishya Guru, Om Vishnupada Stotra Sati Shishyamat, His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And again, I offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of my Param Guru Devis, Nitya Lila Pavishta Om Vishnupada Stotra Sati Shishyamat, Srila A.C. Bhakti Swami Srila Prabhupada, and Nitya Lila Pavishta Om Vishnupada Stotra Sati Shishyamat, Srila Bhakti Pragyan Krishna Maharaj, all Judana Sannyasis, Vaishnavas, Vaishnavas. So, Hari Priya Prabhu and Pujapad Tirtha Maharaj, they've spoken very, very wonderful on 4 Sampradayas and 4 Acharyas. As Srila Gurudev has explained, that in this Navadvip, that these 4 Acharyas, Sri Madhvacharya, Sri Ramanujacharya, Sri Nimbaditya and Vishnu Swami, that they came to this Sri Navadvip Dham and they received blessings from Sri Chaitanya Mahaprabhu. But not only them, but also Sri Sankaracharya. That who's Sri Sankaracharya? That he's incarnation of Lord Shiva. And Lord Shiva, he's known Vaishnavanam Yatak Shambhu. Especially he's very dear to the Lord, because when there's something very, very difficult to perform, then the Lord, he may call on Lord Shiva. Just like when there was a poison and they did not know who to call, who to get help from. Then the Lord, he said, you go and you bring Lord Shiva, and then very easily he drank that poison. So now the Lord, he's seeing that his devotees are being disturbed. They're being disturbed by people who are presenting so many, who are of demoniac nature, influenced by Tamagun and Rajagun. So he has a very special mission. So he calls Lord Shiva. He says that you go in this Kali Yuga and you present a philosophy which will bewilder the people. It will be covered, it will be Buddhism, but presented in a slightly different form. And in this way, those who are disturbing my devotees, you take them away. So, Lord Shiva, he incarnated as Shankaracharya. It's been explained. His philosophy is Vivatvad. They say Brahma Satyam, Jagat Mithya. That everything is Brahman. That this material world, that myself, you, that this actually is false. Everything is one. What is the cause? The cause is due to ignorance. Because of ignorance, now illusion has come. Srila Gurudev is explained in the biography of Srila Param Gurudev that if they say that the cause is ignorance, then where is ignorance coming from? It's stated that Brahman is Brahman Satyam, Jnanam, Ananta Brahman. That Brahman is the absolute truth. That it is full of knowledge. That Brahman is endless, unlimited. So how, in that Brahman, who is Eva Dvitiyam, that one, Eka, Eva Dvitiyam, one, without a second, how can there be any ignorance which will come in? So then, they may say that somehow illusion has come in through the living entities. But how the living entities have come? If there's only one Brahman. So, this philosophy is very insidious because it takes away the individuality and the ability of the living entity to render eternal service, or it's presenting that. So the Mayavadis, then they reconcile. They try to reconcile, though they cannot. They say that actually, that this material world, that you, myself, that we're Sat and Asat. We're real and unreal. How are we real? That from this perception of the Jeev, then we can say that yes, there's real existence of variegatedness. But this is not the real perception. This Vyavaharik Vichar. But from the transcendental, from the perception of Brahman, from the Paramatic Vichar, they say that actually, that all this variety, that this is unreal. So, actually, Sri Shankaracharya presented this insidious philosophy, but he was bound to do so because he was ordered by his Lord
and also to bring people from the path of Buddhism and to at least coming under the umbrella of the Vedas. And what he's done, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he's presented a Chinta Beda Tattva Siddhant. But he is, in a very, very, very covered way, he has presented a form of Bed and Obey. Because he says that there's reality and unreality. That there's difference and non-difference. That from the point of view of Brahman, that actually there's Abhay. And from the point of view of the living entity, then there's Bay. But this philosophy is completely useless. So to defeat, then appeared Sri Ramanujacharya. Ram Anuja. That Anuja means younger brother of Ram. And this is Lakshman, who's appeared in this world to present the path of bhakti. That is already been stated. He's presented Vishishta Advait. That all the four acharyas, naturally they'll present the variegateness of this world, the individuality of the living entities, and also the Supreme Lord. That always there's difference. But he's saying Advait, Vishishta Advait. How is it Vishishta Advait? He's saying that it's Vishishta Advait because that Supreme Lord, Bhagwan, or Parabrahman, that he is Visheshya, and the living entities, the material cosmic manifestation, that this is Visheshana. That in a sentence, you have what is prominent, the noun, and then you have those Srila Gurudeva Ki Jai. So you have that which is prominent, the noun. For instance, you say